Hello students, welcome to the next lecture of States of Matter. After the discussion of various gas laws, today we are going to discuss the deviation from ideal behavior by real gases. Now from the previous lecture, we have studied that real gases and ideal gases both has a small difference. And what's the difference? First thing, ideal gas are hypothetical in nature. Second thing, ideal gases definition are those gases which obeys all the gas laws at all temperature and pressure. It means they should not develop intermolecular force of attraction, and the volume occupied by the single molecule should be negligible as compared to total volume of the container at all pressure and temperature. The volume occupied by the single molecule should be negligible as compared to total volume occupied in the container at all temperature and pressure. ये point हम लोग देखेंगे बाद में. अब रियल गैस क्या होते हैं? इफ यू रिमेंबर, रियल गैसेस आर दोज गैसेस विच आर फाउंड इन नेचर. दे ओबे gas laws under two conditions, high temperature and low pressure. But if you change the condition, that is low temperature and high pressure, the gas molecule will come, the kinetic energy will be less because of low temperature, and because of high pressure they will come close to each other, they get compressed and they will develop intermolecular forces, they will change their state and you cannot apply gas laws. That is why we say real gases are those gases which obeys gas law under a certain condition, that is high temperature and low pressure, plus the volume occupied by the molecule is not negligible as compared to total volume of the container at a high pressure. So real gases ideal नेचर से कैसा डिविएट करते हैं, तो उसके एक ही सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि दे डेवलप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. जैसे ही वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप करते हैं, वो अपना स्टेट चेंज करते हैं, वो या तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद आप उन पे गैस लॉज अप्लाई नहीं कर सकते हैं. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द आइडियल गैसेस एंड द रियल गैसेस. नाउ देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स, विद द स्टडी ऑफ दोज पैरामीटर्स वी कैन अंडरस्टैंड द डिविएशन ऑफ दोज रियल गैसेस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर. तो we are going to study this deviation of real gas from ideal behavior. Okay, now in case of ideal gas we have a equation that is PV is equal to nRT. ये सब लोगों को पता है. This is the ideal gas equation. Now if n is equal to 1, we have PV is equal to RT. Okay, now for ideal gas, PV upon RT should be equal to 1. Since R and T are constant, we can say PV, the product of pressure and volume, should always be constant, like we have seen the Boyle's law. तो ideal gas equation में PV upon RT हमेशा 1 होना चाहिए. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रियल गैसेस में ये कंडीशंस थ्रू आउट द टेम्परेचर प्रेशर नहीं देखने को मिलता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बॉयल्स लॉ का ये ग्राफ प्लॉट किया है, बॉयल्स लॉ, द ग्राफ ऑफ पीवी वर्सेस पी, आपको याद होगा कोई भी प्रेशर पे अगर गैस आइडियल है तो उसका पीवी हमेशा क्या आना चाहिए? कांस्टेंट. मतलब ये आइडियल गैस का ग्राफ है, वे पीवी शुड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एट ऑल प्रेशर. बट इफ यू टॉक अबाउट रियल गैसेस, जैसा हम लोग एक रियल गैस के बारे में स्टडी करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, रियल गैस लाइक मीथेन. तो मीथेन का ग्राफ ऐसा कुछ आएगा यहाँ से. इट गोज लाइक दिस, CH4, दिस इज मीथेन. ओके, दिस इज मीथेन. देखो मीथेन का ग्राफ ऐसा जा रहा है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ग्राफ ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. इट गोज लाइक दिस, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड. Now you have a graph of helium. The helium graph goes like this. Okay, and you have a graph of hydrogen. The hydrogen graph goes like this. So see properly. These are real gases. For these gases, the PV is constant. PV is constant at a very low pressure. ठीक है, इसके लिए हम लोग बोलते हैं ना, द गैस बिहेव्स आइडियली एट ए वेरी लो प्रेशर. तो दिस एक्सपेरिमेंटल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डिविएशन ऑफ दीज डिफरेंट गैसेस. नाउ यू सी टू गैसेस, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन. व्हेन यू इंक्रीज प्रेशर, द कर्व गोज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, and at a high pressure it will increase. Similarly for methane, the curve goes first in a downward direction,
goes to a minimum value and then the sudden the PV value will increase. तो just try to understand कि हो क्या रहा है. आप लो प्रेशर पे ले रहे हो तो लो प्रेशर पे, फॉर एग्जांपल मीथेन, लो प्रेशर पे मीथेन में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स डेवलप नहीं हुआ. इंटरमोलिकुलर फोर्स डेवलप नहीं हुआ मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट. बट जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, व्हाट इज हैपनिंग एट द मॉडरेट प्रेशर, व्हाट इज हैपनिंग, मीथेन मॉलिक्यूल प्रेशर बढ़ाने पे पिस्टन को नीचे लेके जाओगे तो मीथेन मॉलिक्यूल साथ में आएंगे. एंड दिस ग्राफ इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर. आपको याद होगा बॉयल्स लॉ हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है. तो जब आप प्रेशर थोड़ा बढ़ाते हो, मॉडरेट प्रेशर में जाते हो तो मीथेन मॉलिक्यूल नजदीक आते. जब मीथेन मॉलिक्यूल नजदीक आते दे डेवलप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. व्हेन दे डेवलप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो साथ में एसोसिएट होना चालू हो जाते हैं तो उनका वॉल्यूम कम हो जाता है. अगर वॉल्यूम कम होगा तो पीवी कम हो जाएगा, बिकॉज पीवी इज प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. तो अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो पीवी कम होगा. तो बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस द वॉल्यूम डिक्रीजेस, पीवी डिक्रीजेस. यहां पर आने के बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैक्सिमम हो गया. तो कैन आई से दैट कि अगर ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो रहे हैं, डोमिनेंट हो रहे हैं at this point. But when you increase high pressure, the intermolecular forces between the methane. अब मीथेन के बीच में कौन से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगी? मीथेन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. ये जितने भी मॉलिक्यूल है ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर है. तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में एक ही फोर्स होता है, डिस्पर्शन फोर्स. लेकिन जब आप प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो वो मॉलिक्यूल आपस में वाइब्रेट होगे एंड दे विल बाउंस बैक एंड दे विल एक्सपांड. सो व्हेन दे एक्सपांड द वॉल्यूम सडनली इंक्रीज. इफ द वॉल्यूम सडनली इंक्रीजेस, पीवी वैल्यू विल इंक्रीज एंड देयरफॉर देयर इज अ सडन राइज इन द वैल्यू ऑफ पीवी. तो at a low pressure they are behaving ideally. At a moderate pressure they develop intermolecular forces. इसके लिए देखो ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है which is called as negative deviation due to intermolecular forces. अच्छा, when the pressure is very high कौन से forces develop हो गए? Repulsive forces. इसके लिए वो कौन सा deviation बता रहा है? पॉजिटिव डिविएशन बता रहा है. सो ऑल दीज गैसेस. अब अगर आप बात करोगे कार्बन मोनोऑक्साइड की तो उसका भी यही कंडीशन है. पहले लो प्रेशर पे इट इज बिहेविंग आइडियली, पीवी इज कांस्टेंट. थोड़ा प्रेशर मॉडरेट करोगे दे डेवलप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एट दिस पॉइंट. देन फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर दे विल डेवलप अ रिपल्सिव फोर्सेस एंड दे विल बाउंस बैक. एंड वॉल्यूम डिक्रीज होने के बाद वॉल्यूम इंक्रीज होगा. मतलब पीवी कांस्टेंट थ्रू आउट रहने वाला नहीं है. अब हाइड्रोजन और हीलियम को बराबर देखोगे तो ये एक्सट्रीमली नॉन पोलर गैसेस, इनके साइज बहुत छोटे हैं. और आपको पता होगा डिस्पर्शन फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज. अगर साइज बहुत छोटा होता है तो डिस्पर्शन फोर्सेस भी बहुत कम होते हैं. इसके लिए लो प्रेशर पे दे आर बिहेविंग आइडियली. बट व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर इज मॉडरेट और हाई प्रेशर दे विल ट्राई. when you increase the pressure, suppose helium लिया है, they will try come close to each other, but उनमें intermolecular force develop नहीं होंगे and they will bounce back and there will be a sudden expansion. So that is why they don't show negative deviation, they show only positive deviation because of the greater repulsive forces. So ये graphical representation ही आपको एक idea देगा कि these real gases they are behaving ideally only at the low pressure. Okay guys, now to understand the deviation of real gases from the ideal behavior, one more term is introduced in the equation that is called as Z. Z is called as compressibility factor. ये कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया? रियल आइडियल गैस के इक्वेशन में. आइडियल गैस का इक्वेशन क्या बोलता है? PV इज इक्वल टू nRT. तो यू इंट्रोड्यूस अ Z. नाउ फॉर 1 मोल n इज इक्वल टू 1, तो PV इज इक्वल टू ZRT. मैंने 1 मोल का इक्वेशन लिया. नाउ दिस वॉल्यूम विल बी आइडियल वॉल्यूम. ओके, नाउ रियल गैस के लिए P रियल इज इक्वल टू RT लिखेंगे. दिस इज अगेन फॉर विच मोल? 1 मोल. Now if I divide this two equation, we get Z is equal to, अगर मैंने दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया मतलब 2/1 कर रहा हूं तो प्रेशर और RT कैंसिल हो रहा है, तो Z इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस. ओके, अब आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, दोनों के वॉल्यूम अगर इक्वल है तो Z वैल्यू कितना होगा? 1. मतलब गैस क्या बिहेव कर रहा है? आइडियली. लेकिन अगर आइडियल गैस का वॉल्यूम रियल गैस से ज्यादा है तो मतलब रियल गैस का वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम कब कम होगा? जब वो डेवलप करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डाउनवर्ड. इसका मतलब Z जो रहेगा, अगर रियल वॉल्यूम ज्यादा है
सॉरी रियल वॉल्यूम कम है और आइडियल वॉल्यूम ज़्यादा है, तो Z विल बी लेस देन 1। मतलब लेस देन 1 हो रहा है मतलब रियल वॉल्यूम कम हो रहा है, रियल वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब यहाँ पर क्या डेवलप हो रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो बिकॉज ऑफ दिस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विल बी लेस देन 1। सो इफ इट इज़ लेस देन 1, सो डेफिनेटली यहाँ पर इन लोगों ने क्या डेवलप किया है, they have developed what, intermolecular forces in this case, and it leads to negative deviation, जो हम लोग ने यहां देखा नेगेटिव डिविएशन। बट अगर आइडियल वॉल्यूम कम है और रियल वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया, मतलब Z इज ग्रेटर देन 1, मतलब यहां पर उन लोगों ने रिपल्सिव फोर्सेस डेवलप किए, आपस में मॉलिक्यूल रिपेल होके एक्सपांड हो गया, मतलब आइडियल वॉल्यूम से वॉल्यूम ज्यादा हो गया, तो दिस विल टर्म एज पॉजिटिव डिविएशन। तो इवन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डिविएशन ऑफ गैस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। यू हैव टू रिमेंबर कि फॉर अ आइडियल गैस इक्वेशन Z is equal to PV upon RT for 1 mole. If this value is equal to 1, then the gas is behaving ideally. For example, if I plot a graph, अगर मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है, टेक्स्ट बुक का ही मैं ग्राफ ले लेता हूं Z के लिए, बराबर देखना है ग्राफ को। यार मैं Z प्लॉट कर रहा हूं, वे Z इज नथिंग बट PV अपॉन RT। 1 मोल के लिए RT होगा, N मोल होगा तो NRT हो जाएगा। यहां पर ले रहा हूं मैं प्रेशर, सपोज आई सिलेक्ट दिस वैल्यू एज 1, तो इफ Z इज इक्विवेलेंट टू 1, मतलब ये जो ग्राफ बनेगा ये आइडियल होगा, तो ये आइडियल लाइन हो गई। अब हम लोग डिफरेंट गैसेस प्लॉट कर रहे हैं। ओके, सबसे पहला मैं गैस प्लॉट करता हूं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो ऐसा जा रहा है, फिर आएगा मीथेन, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आ गया यहां पर फिर ये आ गया मीथेन CH4, सिंपल है। फिर मीथेन के बाद मैं प्लॉट कर रहा हूं ऑक्सीजन O2। ओके, फिर उसके बाद में प्लॉट कर रहा हूं सपोज हाइड्रोजन H2, और फिर मैं प्लॉट कर रहा हूं इसके अंदर सपोज नाइट्रोजन। तो देखो ये नाइट्रोजन यहां से आएगा, देखो यहां से इस लाइन, ये जो लाइन है एग्जैक्टली ऊपर से नाइट्रोजन निकलेगा N2 गैस। तो सी प्रॉपरली, योर these are the real gases. For all these real gases at a low pressure, Z is equivalent to 1. ओके, लेकिन अगर आप बात करोगे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ऑक्सीजन की, तो मॉडरेट प्रेशर पे आने के बाद इन लोगों ने डेवलप कर लिया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो इनका वॉल्यूम कम हो गया, तो Z लेस देन 1 हो गया, Z लेस देन 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोग इनिशियली मॉडरेट प्रेशर पे कौन सा डिविएशन दिखा रहे हैं, नेगेटिव डिविएशन, बिकॉज द रियल वॉल्यूम इज लेसर देन द आइडियल वॉल्यूम। फिर उसके बाद में जब आप ज्यादा प्रेशर डालते हो तो इनके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और ये एक्सपांड हो जाते हैं, तो एक्सपांशन की वजह से दे शो पॉजिटिव डिविएशन विद द रियल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन द आइडियल वॉल्यूम। अब आप बात करोगे हाइड्रोजन की, तो मैंने आपको बता चुका था कि हाइड्रोजन में सिर्फ फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, इसके लिए लो प्रेशर पे Z इज इक्वल टू 1 बिहेविंग आइडियली, हाई प्रेशर पे वो पॉजिटिव डिविएशन दिखाता है। बट इफ यू टॉक अबाउट नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन देखो थोड़े ज्यादा प्रेशर तक के इट इज बिहेविंग मोर आइडियली। सी, ज्यादा प्रेशर मतलब आप लो प्रेशर से थोड़ा और इंक्रीज कर रहे हो प्रेशर जब तक कि ये आइडियल बिहेव कर रहा है, फिर ज्यादा और प्रेशर बढ़ाने पे दे डेवलप रिपल्सिव फोर्सेस एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल विल एक्सपांड, एंड इफ दे एक्सपांड the Z value will be greater than 1, that is real volume is greater than the ideal volume. Obviously gas expand होगा तो उसका volume increase होगा। तो see properly, nitrogen is behaving more ideally than other gases। तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि nitrogen is more close to the ideal behavior as compared to all other gases. So if you have the real gases, you calculate Z value for all the real gases, you plot a graph, you will come to know which gases behave more ideally under a constant temperature, because this graph is at constant temperature, Boyle's law का है, and variation with the pressure। तो Z value हमको एक हेल्प करता है। अब एक और एक ग्राफ बताता हूं, it is not there in your textbook but it is really related to Z value। I'll rub this out, this one, the graph is again related to the compressibility factor। एक ग्राफ बराबर से देखो, ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के लिए प्लॉट किया गया। मतलब मैंने यहां पर क्या किया है, Z लिया है, प्रेशर लिया है, Z 1 है, तो मतलब ये आपका हो गया आइडियल बिहेवियर।
अब हम लोग ने क्या किया, नाइट्रोजन गैस अलग अलग सिलेंडर में लिया एट डिफरेंट टेम्परेचर। मतलब आपने 4 सिलेंडर लिए, चारों में नाइट्रोजन है बट चारों सिलेंडर के टेम्परेचर कांस्टेंट है बट डिफरेंट है। मतलब सपोज एक टेम्परेचर है नाइट्रोजन का एट 223, एक है 273, एक है 373, एक है 323। सो वी प्लॉट अ ग्राफ ऑफ नाइट्रोजन एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो हम लोग ने 4 कंटेनर लिए है, सपोज इसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है, बट ये चारों कंटेनर के प्रेशर हमको टेम्परेचर हमको कांस्टेंट रखने हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर एक कांस्टेंट टेम्परेचर सिलेक्ट करना चालू कर दिया। ओके, अब वो कांस्टेंट टेम्परेचर के हिसाब से वी विल प्लॉट अ ग्राफ। दैट ग्राफ इज विद रिस्पेक्ट टू दी Z वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन। तो हम लोग ने 4 सिलेंडर लिए, चारों के अंदर हम लोगों को प्रेशर अप्लाई करना है, पिस्टन से हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे, बट दिस टाइम विल कीप ऑल द टेम्परेचर कांस्टेंट, लेकिन चारों में अलग अलग आपको टेम्परेचर लेना पड़ेगा। सो इफ यू टेक डिफरेंट टेम्परेचर, डेफिनेटली यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ Z फॉर different temperature. So what I'll do is select 4 temperature here. Okay, so we select 4 different constant temperature. Suppose ये नाइट्रोजन का जो सिलेंडर है, the container है, it is maintained at suppose 200 degree Celsius. Okay, this nitrogen is maintained at 51 degree Celsius. ये हम लोग ने मेंटेन किया है सपोज -25 डिग्री सेल्सियस, और ये मेंटेन किया हम लोगों ने -100 डिग्री सेल्सियस पे। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर प्रेशर अप्लाई करते जा रहे हैं। प्रेशर अप्लाई करते जाओगे, Z वैल्यू कैलकुलेट करोगे, Z वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद सबके ग्राफ प्लॉट करोगे। नाउ 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री अगर सेल्सियस का मुझे ग्राफ प्लॉट करना है तो द ग्राफ गोज लाइक दिस, 200 डिग्री सेल्सियस। हाई टेम्परेचर है तो एक्सपांशन ही होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा डेवलप नहीं होगी, तो प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो गैस विल एक्सपांड बिकॉज द टेम्परेचर इज हाई, तो इट विल शो डेफिनेटली पॉजिटिव डिविएशन। फिर 51 डिग्री सेल्सियस पे ग्राफ हमारा कुछ ऐसा जाता है, दिस इज 51 डिग्री सेल्सियस। देन यू हैव अ ग्राफ ऑफ -25 डिग्री सेल्सियस, तो दिस इज -25 डिग्री सेल्सियस, -25 degree Celsius, and this is -100 degree Celsius. So see properly, ऑब्वियस बात है जब आप टेम्परेचर माइनस में रख रहे हो और थोड़ा प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे और इनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी, बिकॉज द टेम्परेचर इज वेरी लेस, सो दे विल डेवलप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इनिशियली एंड बिकॉज ऑफ विच दे विल शो अ नेगेटिव डिविएशन, मतलब दे आर बीइंग कंप्रेसिबल। फिर उसके बाद प्रेशर और ज्यादा बढ़ाओगे तो दीज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस विल ब्रेक, द मॉलिक्यूल विल एक्सपांड बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस, वो एक्सपांड हो जाएंगे, एक्सपांड होने के बाद गैस वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मतलब इनिशियली अट्रैक्टिव फोर्स है, फिर रिपल्सिव फोर्स है। बट बराबर देखोगे तो 51 डिग्री सेल्सियस पे गैस मॉलिक्यूल इज बिहेविंग आइडियली फॉर अ लॉन्ग रेंज ऑफ प्रेशर। सो दैट टेम्परेचर वेयर a particular gas behave ideally for a long range of pressure, little bit long range of pressure, that temperature is called as Boyle's temperature. तो याद रखना Boyle's temperature क्या होता है? It is a temperature at which the gas behave ideally for a little bit long range of temperature, that is called as Boyle's temperature. So ये ग्राफ से आपको क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि लो टेम्परेचर पे पहले गैस कंप्रेस हो गई फिर एक्सपांड हो गई, मतलब नेगेटिव डिविएशन से पॉजिटिव डिविएशन, रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स से रिपल्सिव फोर्सेस। हाई टेम्परेचर पे जैसी प्रेशर बढ़ाओगे रिपल्सिव फोर्सेस आएगा, एक्सपांड ही होगी। लेकिन 51 डिग्री सेल्सियस पे लिटिल बिट लॉन्ग रेंज ऑफ प्रेशर द गैस इज बिहेविंग आइडियली, देखो ये आपका नाइट्रोजन के लिए, जो अगर मैं पूछूंगा नाइट्रोजन के लिए which is a Boyle's temperature, मतलब which is a temperature at which it behaves ideally for a long range, you will say sir 51 degree Celsius. So you have to remember this कि Boyle's temperature क्या होता है, where the gas behaves ideally for a long range of temperature. Okay, so this is Boyle's temperature for nitrogen. Okay, अब याद रखने का if Z value is less than 1 मतलब गैस ज़्यादा compressible है, if Z value is greater than 1 मतलब गैस ज़्यादा expand होगी, ज़्यादा expansion में जाएगी जब आप उसको प्रेशर बढ़ाओगे उस गैस के ऊपर। और अगर Z वैल्यू क्लोज टू 1 आ गई इसका मतलब गैस इज बिहेविंग व्हाट आइडियली। सो Z इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द आइडियल बिहेवियर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वन मोर ग्राफ टू अंडरस्टैंड द आइडियल बिहेवियर एंड लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। I'll rub this out.
दिस ग्राफ इज बेसिकली कॉल्ड एज एंड्रूज आइसोथर्म। आइसोथर्म मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, हमारे सारे ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही है। आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने यहाँ पर बेस मॉलिक्यूल लिया है CO2 को, ठीक है, एक ग्राफ प्लॉट किया है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। आपको पता है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम यानी बॉयल्स लॉ का ग्राफ है, और आपको ये भी पता होगा कि एज प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेस। मतलब अगर मुझे इसका आइडियल गैस का इक्वेशन में आइडियल गैस का ग्राफ बनाना है तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बहुत कम होगा, और प्रेशर बहुत कम है तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली ये ग्राफ कुछ ऐसा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए, मतलब ये आपका आइडियल गैस का ग्राफ होगा, ठीक है। अब CO2 को हम लोग ने स्टडी किया प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप एट डिफरेंट टेम्परेचर। सबसे पहला टेम्परेचर लिया 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस पे ग्राफ ऐसा जा रहा है, मतलब एट 50 डिग्री सेल्सियस इट इज मोर और लेस बिहेविंग व्हाट आइडियली। फिर उसके बाद हम लोग ने 30.98 पे लिया टेम्परेचर, तो यू कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट एवरी टाइम। तो आपने एक सिलेंडर लिया था, एक कंटेनर लिया था जिसका टेम्परेचर आपने 50 डिग्री सेल्सियस पे रखा, इसमें CO2 गैस डाला। जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो वॉल्यूम कम होता जा रहा है, और फिर आप इसका वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट करोगे तो इट गोज लाइक दिस। बट आपने क्या किया, आप दूसरा कंटेनर लिया, उसमें फिर CO2 डाला, बट दिस टाइम द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट एट 30.98 डिग्री सेल्सियस, और आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, 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 गैस नज़दीक आता जा रहा है। तो देखो द ग्राफ गोज लाइक दिस एट 30.98, ये ग्राफ ऐसा आएगा दिस पॉइंट 30.8, फिर देन इट शोज अ कर्व लाइक दिस। तो एक्चुअली में हो रहा क्या है, ये ग्राफ लीनियरली क्यों नहीं जा रहा है? ये लीनियरली इसके नहीं जा रहा है बिकॉज एट दिस पॉइंट, एट दिस प्रेशर, एट 30.98 डिग्री सेल्सियस, एट दिस प्रेशर एंड एट दिस वॉल्यूम द गैस इज गेटिंग लिक्विफाइड। इस पॉइंट पे आने के बाद इस प्रेशर पे गैस लिक्विफाई हो गया और उसका वॉल्यूम इतना था। सो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट इज द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो ये गैस यहां पर आके लिक्विड हो गया, इसके लिए ज्यादा इसका वॉल्यूम कम नहीं हो रहा, ये ज्यादा कंप्रेस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कंप्रेस होता तो वॉल्यूम ऐसा डिक्रीज होना चाहिए, बट वो डिक्रीज नहीं हो रहा है आइडियली। सो एट दिस टेम्परेचर एट दिस पॉइंट द गैस इज गेटिंग लिक्विफाइड। सो कैन आई से क्रिटिकल टेम्परेचर इज अ मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर अ गैस टू गेट लिक्विफाई। तो ये पॉइंट पे आने के बाद गैस लिक्विफाई हुआ। अभी आपने क्या किया, इसका और कम टेम्परेचर लिया, तो और कम टेम्परेचर हम लोग लेंगे सपोज 21.50, ठीक है, ये ले लिया 21.50। बराबर समझना, मैं उल्टा जा रहा हूं, जैसा आप प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होते जाएगा। तो मतलब एट अ वेरी लो प्रेशर एट 21.5 डिग्री द वॉल्यूम इज वेरी हाई। ध्यान देना, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम कम हो रहा है, देखो प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, फिर प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम होते जा रहा है। फिर यहां आने के बाद अब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम होने लग गया और प्रेशर इज व्हाट कांस्टेंट। फिर उसके बाद में वॉल्यूम पूरा के पूरा देखो बराबर, वॉल्यूम पूरा के पूरा कांस्टेंट हो गया। आप कितना भी प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो थिंक प्रॉपर्ली क्या हुआ, इस पॉइंट पे एट 21.5 डिग्री सेल्सियस ये गैस था, इस पॉइंट पे आने के बाद वो लिक्विफाई होना चालू हो गया। जब कोई भी चीज़ लिक्विफाई होती है गैस से लिक्विड, तो एक इक्विलिब्रियम डेवलप होता है, दैट इज गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम। कोई भी चीज़ मेल्ट होगी, फॉर एग्जांपल आइस है, आप उसको मेल्ट करोगे तो दोनों चीज़ दिखेगा आपको, सॉलिड भी दिखेगा, लिक्विड भी दिखेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब मेल्टिंग इज अ प्रोसेस वेयर लिक्विड एंड सॉलिड आर इन इक्विलिब्रियम, इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस वेयर लिक्विड एंड गैस आर इन इक्विलिब्रियम। मतलब दोनों चीज़ दिखेगी आपको। जैसा आप गैस को कंडेंस करते हो तो वो लिक्विड बनता है, तो आपको दोनों चीज़ दिखेगी, थोड़ी गैस भी दिखेगी और थोड़ा लिक्विड फॉर्म होते हुए दिखाई देगा। तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर वेयर एट अ रियली लो प्रेशर वॉल्यूम हाई था, फिर जैसा प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होते जाएगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। ये पॉइंट पे आने के बाद गैस मॉलिक्यूल इतना नजदीक आ गए, दे डेवलप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड दे स्टार्ट लिक्विफाइंग। जैसे ही गैस लिक्विफाई हो रहे ऑब्वियसली वो कंप्रेस हो गए, मतलब वॉल्यूम कम होते जाएगा गैस का। इस पॉइंट पे आने के बाद फिर आप जितना भी प्रेशर बढ़ाओ
लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, देखो इसके लिए उनका वॉल्यूम मोर और लेस कांस्टेंट हो गया प्रेशर हाई होने के बाद भी, मतलब ये पॉइंट के बाद में वो पूरा लिक्विड है तो इसके लिए आप उसको कंप्रेस नहीं कर पा रहे हो। सो यहां पर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको दोनों चीज दिखाई देगी, लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विथ व्हाट, गैस। अब हम लोग एक और एक टेम्परेचर लेते हैं 13.10, और कूल कर दिया आपने 13.10, देखो लो प्रेशर पे वॉल्यूम हाई है, फिर उसके बाद में आप प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर इंक्रीज करोगे, देखो वॉल्यूम कम होता जा रहा है, वॉल्यूम कम होता जा रहा है। अब ये पॉइंट पे आने के बाद वो लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गया, इसके लिए वॉल्यूम देखो कम होता जा रहा है, प्रेशर इज कांस्टेंट, एंड देन जितना भी प्रेशर अप्लाई करो आपको वॉल्यूम सेम मिलने वाला है। क्यों? बिकॉज इस पॉइंट पे आने के बाद वो लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गया। ये पूरा जो ग्राफ है, इतना पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन है, दैट इज इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड व्हाट, गैस। फिर इस पॉइंट पे आने के बाद वो पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कर रहे हो वो कंप्रेस नहीं हो रहा है, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है। सो इफ फ्रॉम दिस पॉइंट इफ आई ड्रॉ दिस डोम, तो इनसाइड दिस डोम देयर इज अ लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। एट द राइट हैंड साइड ऑफ द डोम there is only gas, at the left hand side so there is only liquid which is not compressible। इसके लिए देखो इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, आप कितना भी प्रेशर बढ़ा रहे हो लिक्विड कंप्रेस ही नहीं हो रहा है। सो 30.98 is the minimum temperature where the liquefaction start, this is called as critical temperature। इस टाइम पे जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को हम लोग क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं, उस टाइम पे जो वॉल्यूम होता है उसको हम लोग क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं। अब एक चीज याद रखना, क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विफिकेशन, मतलब जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना इजीली गैस लिक्विफाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक गैस ए है, एक गैस बी है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है, इसका 100 डिग्री सेल्सियस है, दोनों गैस का टेम्परेचर 300 है। अब मैं आपको बोलूंगा कि इसको लिक्विफाई करो, तो गैस को लिक्विफाई करना है मतलब गैस को कूल करना है, तो गैस को कूल करोगे, दोनों गैस 300 पे थे, जब आप कूल करोगे तो सबसे पहला टेम्परेचर कौन सा रीच होगा, 300 से कूल करते करते 200, फिर 100 आएगा, मतलब ए वाला पहले लिक्विफाई होगा, उसके बाद बी लिक्विफाई होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है वो गैस इजीली लिक्विफाई होता है। प्लस क्रिटिकल टेम्परेचर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस और पोलार मॉलिक्यूल। व्हाई? बिकॉज पोलार मॉलिक्यूल लाइक HCl ले लिया आपने, HBr ले लिया, SO2 गैस ले लिया, ये सब पोलार मॉलिक्यूल है, मतलब इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा मतलब ये बहुत जल्दी लिक्विफाई होंगे, इसके लिए इनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और पोलार मॉलिक्यूल। अगर नॉन पोलार मॉलिक्यूल है तो उनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम है, जैसा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, अगर इनको लिक्विफाई करना है तो आपको माइनस में जाना पड़ेगा। ओके गाइस, so you have to remember this graph के this dome shape region has both liquid gas equilibrium, right hand side is gas obeying Boyle law, left hand side is liquid, तो not compressible, इसके लिए इनका वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। ओके, नाउ after this Andrews isotherm, after the detailed explanation of deviation from the ideal behavior by real gas, let us now derive a equation for real gas। so real gas का equation ले लेते हैं हम लोग। equation real gas का कैसा बनाएंगे? तो real gas का equation बनाने के लिए हम लोगों को दो कंडीशन दिमाग में रखनी पड़ेगी, that is ideal condition and real condition। now आइडियल कंडीशन क्या होती है? आइडियल कंडीशन ये होती है कि गैस शुड नॉट डेवलप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसको कोई भी टेम्परेचर प्रेशर दिया है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप नहीं करना चाहिए, दैट इज द आइडियल कंडीशन। ओके, प्लस द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सिंगल मॉलिक्यूल शुड बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, मतलब खुद का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होना चाहिए एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ये आइडियल कंडीशन है। ओके, so now let us try to derive an equation for real gas and ideal gas। okay, now सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लो प्रेशर। लो प्रेशर पे तो सारे गैस आइडियली बिहेव करते हैं। तो सपोज ये मैंने कंटेनर लिया है, इसके अंदर है, एंड दिस इक्वेशन इज नॉट देयर इन योर टेक्स्ट बुक। इसका एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक में नहीं है, थोड़ा बराबर समझना। ये मैंने लिया है आइडियल गैस, ठीक है। इसमें हम लोग ले लेते हैं कोई भी रियल गैस। आइडियल गैस मतलब हाइपोथेटिकल।
ये हो गया रियल गैस। एट अ वेरी लो प्रेशर, एट अ वेरी लो प्रेशर मतलब बाहर का प्रेशर हम लोग ने बहुत कम रखा है, एक्सटर्नल प्रेशर इज वेरी लेस, तो मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर इन बोथ द केसेस, आइडियल एज वेल एज रियल, मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब दे हैव ऑलमोस्ट we can say they do not have intermolecular force of attraction. If they do not have intermolecular force of attraction, then they are very free to go and collide with the walls of the container. ये molecule जब collision करेगा wall पे तो अपना pressure exert करेगा. The pressure exerted by this molecule will be a real pressure. Similarly, the pressure exerted by this molecule on the wall is called as ideal pressure. ठीक है, real pressure, ideal pressure. Plus ये एक single molecule है, तो इसका खुद का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम से नेग्लिजिबल है ऑब्वियसली। तो कैन आई से दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सिंगल मॉलिक्यूल, मतलब फॉर एग्जांपल पूरे क्लास में 100 बेंच है लेकिन एक ही स्टूडेंट है, तो एक ही स्टूडेंट है तो वो बैठा है, मतलब अगर मैं बोलूंगा कि ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है तो आप बोलेंगे सर पूरे क्लास का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है, कहीं भी जाके बैठ सकता है, प्लस वो जहां बैठा है वो वॉल्यूम भी आप इंक्लूड करो, तो मैं बोलूंगा वो वॉल्यूम इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो अकेला है, वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा क्लास में वो नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल क्लास का वॉल्यूम। सो at a very low pressure the volume occupied by single molecule of real gas or single molecule of ideal gas is negligible as compared to total volume। तो मतलब अगर मैं इसका वॉल्यूम बात कर रहा हूं तो ये रियल वॉल्यूम है, ये यहां पर आइडियल वॉल्यूम है, और लो प्रेशर पे आइडियल प्रेशर इज इक्वल टू रियल प्रेशर एंड आइडियल वॉल्यूम इज इक्वल टू रियल वॉल्यूम। सो एट अ लो प्रेशर वी कैन से द गैस इज बिहेविंग आइडियली। ओके, और ये एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोगों ने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, ये याद रखने का, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब आप क्या करेंगे, एक काम करते हैं हम लोग मॉडरेट प्रेशर पे जाते हैं, मतलब थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाते हैं। कौन सा प्रेशर? एक्सटर्नल प्रेशर, पिस्टन को थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं। तो बराबर देखना, जब मैं थोड़ा प्रेशर बढ़ा रहा हूं, देखो मैंने पिस्टन को नीचे लेके आ गया। अब ये तो आइडियल गैस था, आइडियल गैस में कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, आइडियल गैस आर दोज गैसेज व्हिच डू नॉट डेवलप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये आइडियल गैस का जो मॉलिक्यूल है ये सिंगल मॉलिक्यूल है, ये जाके वॉल पे कोलिजन करेगा और प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वो आइडियल प्रेशर है। ठीक है, वो आइडियल प्रेशर है। ये आइडियल प्रेशर मॉडरेट प्रेशर पे और लो प्रेशर पे दोनों पे कांस्टेंट रहेगा बिकॉज आइडियल गैसेज आर दोज गैसेज व्हिच डू नॉट डेवलप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो आप अगर सिंगल मॉलिक्यूल का प्रेशर कैलकुलेट करोगे या प्रेशर ऑफ आइडियल गैस कैलकुलेट करोगे तो वो कोई भी कंडीशन में सेम आना चाहिए। बट इन केस ऑफ रियल गैस ध्यान देना, जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो ये जो गैसियस मॉलिक्यूल था, अब इसके साइड में, इसके साथ में, मैं रेड कलर से आपको मार्क करके समझा रहा हूं, इसके साथ में जो दूसरे मॉलिक्यूल होंगे वो थोड़े नजदीक आ जाएंगे, क्योंकि प्रेशर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल नजदीक आए। जब मॉलिक्यूल नजदीक आएगा, ये देखो इसके नजदीक आ गए, यहां पर I'll mark it with, see, I hope this will work। मॉलिक्यूल देखो नजदीक आ गए, वेरी क्लोज। Now if this molecule is very close, what it will do? It will try to develop intermolecular forces। और intermolecular forces मॉलिक्यूल्स को सेंटर में खींचता है, मतलब ये जो पीछे मॉलिक्यूल्स है, ब्लू के पीछे जो रेड मॉलिक्यूल्स है, ये ब्लू के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप करेंगे और उसको पीछे की तरफ खींचने के करेंगे। मतलब सपोज मैं वॉल की तरफ भाग रहा हूं और मुझे पीछे से 4-5 लोगों ने पकड़ के रखा है, तो अब मेरा फोर्स वॉल पे, मेरा प्रेशर वॉल पे कम होगा क्योंकि पीछे वाले मुझे अट्रैक्ट करके खींच रहे हैं और मैं आगे की तरफ भाग रहा हूं, तो मेरा प्रेशर वॉल पे कम होगा। लेकिन अगर मैं सिंगल हूं और मुझे कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, सो आई कैन रन विद द सेम स्पीड एंड कैन एक्सर्ट सेम प्रेशर विच आई यूज्ड टू डू एट लो प्रेशर। लाइक इन केस ऑफ आइडियल गैस, यहां पर कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, तो ये जाके जो मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो पहले जैसा ही है, बट अब जो ये मॉलिक्यूल जाके प्रेशर एक्सर्ट करेगा ये कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसके पीछे दूसरे मॉलिक्यूल है, उनको भी इसको ड्रैग करना पड़ेगा साथ में और वॉल पे जाके हिट करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि मॉडरेट प्रेशर पे जो आप रियल प्रेशर निकालते हो, तो रियल प्रेशर इज लेस देन आइडियल प्रेशर बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो रियल प्रेशर इज लेस देन आइडियल प्रेशर।
इसका मतलब आइडियल प्रेशर बड़ा है, तो आइडियल प्रेशर विल बी इक्वल टू रियल प्रेशर प्लस स्मॉल पी। ना याद रखो ये जो वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर करेक्शन। तो आप क्या कर रहे हो, आइडियल गैस में प्रेशर करेक्शन करते हो, ठीक है। तो देखो आइडियल प्रेशर इज रियल प्रेशर प्लस समथिंग, तभी तो ये ज्यादा होगा। तो ये प्लस समथिंग क्या है, मतलब सपोज आपका आइडियल प्रेशर है 10, ठीक है। रियल यहां पर आइडियल प्रेशर 10 था, यहां पर भी 10 था, दोनों सेम। यहां पर आइडियल प्रेशर सपोज हो गया 15, बढ़ गया, तो रियल प्रेशर 10 था, प्लस 5 क्या आ रहा है, 5 इज द प्रेशर करेक्शन, इसके लिए ये 15 हुआ, बढ़ गया। ओके गाइस, तो क्वेश्चन ये है कि आइडियल प्रेशर तो ज्यादा है क्योंकि ये अकेला है, और रियल प्रेशर कम है बिकॉज सबको ड्रैग करना पड़ा है वॉल की तरफ, तो ऑब्वियसली जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो कम करेगा क्योंकि पीछे से उसको मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, तो आगे वाला मॉलिक्यूल वॉल पे जाने के लिए कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो क्वेश्चन ये है कि सर अगर आइडियल प्रेशर ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, तो आइडियल प्रेशर इज इक्वल टू रियल प्रेशर प्लस समथिंग, दैट समथिंग इज कॉल्ड एज प्रेशर करेक्शन। नाउ व्हाट इज दिस प्रेशर करेक्शन, दिस मैं पी डैश कर देता हूं समझने के लिए। दिस प्रेशर करेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कितना मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेटेड है, और कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी में होता है। मोलैरिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो n बाई वी, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दूं तो p डैश विल बी इक्वल टू a इंटू एन अपॉन वी स्क्वायर, मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं a इंटू एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दिस a, दिस a स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, एंड ऑल्सो रिमेंबर a is nothing but फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से ही प्रेशर कम हुआ है रियल का। तो A स्टैंड्स फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल वेयर अराउंड द रियल मॉलिक्यूल। ओके, सो pressure correction is a n square upon v square, where a is called as a magnitude, you can say more specifically magnitude of the force of attraction। तो force of attraction के वजह से ही real pressure कम हुआ है, क्योंकि पीछे उसको मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया गया है दैट एक्चुअली इज द कांस्टेंट फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड याद रखने का, अगर मुझे a का यूनिट निकालना है तो a इज इक्वल टू p डैश इंटू वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। प्रेशर इज atm, volume is liter square, number of moles is mole raised to -2. So this is a unit of force of attraction. Also, force of attraction is directly proportional to polarity of the molecule and directly proportional to size of non-polar molecule, because आपको याद होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, जितना मॉलिक्यूल पोलर है उतना इजीली वो अट्रैक्ट हो सकता है, या तो अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उसका साइज जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा डिस्पर्शन फोर्स होगा। मतलब अगर कोई मुझे बोलेगा सर HCl गैस और हाइड्रोजन गैस में से एक किसका ज्यादा है, तो HCl गैस का, बिकॉज इट इज मोर पोलर, तो मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो दिस इज द प्रेशर करेक्शन एट मॉडरेट प्रेशर। ओके, तो अब हम लोग प्रेशर करेक्शन आप लोग समझ गए दैट अगर मैं प्रेशर करेक्शन की बात कर रहा हूं तो प्रेशर करेक्शन इज नथिंग बट रियल प्रेशर प्लस प्रेशर करेक्शन, दैट इज a n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। ओके, अब थर्ड हम लोग बात करेंगे, ध्यान देना, एट अ हाई प्रेशर। हाई प्रेशर आपने पिस्टन को बहुत नीचे तक लेके चला गया, तो पहले मैं बात करता हूं आइडियल की। ये देखो बहुत नीचे आ गया। अब आइडियल गैस तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं करते, मतलब वो सिंगल मॉलिक्यूल ही रहेगा। इसका मतलब यह है द वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इज अगेन नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो दिस इज द आइडियल वॉल्यूम। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से आप देखिए, मैं बात कर रहा हूं, मैं पिस्टन को बहुत नीचे लेके गया, प्रेशर बहुत हाई है, आपने प्रेशर बहुत ज़्यादा एक्सर्ट कर दिया है। अब हम लोग बात करते हैं रियल गैस की। तो रियल गैसेस जब बहुत नज़दीक आते हैं तो वो आपस में क्या डेवलप करते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप करने के बाद एक मॉलिक्यूल मल्टीपल मॉलिक्यूल से अटैच हो जाएगा और एक लार्ज क्लस्टर बनेगा मॉलिक्यूल का। सो मैं इसको रेड में दिखाता हूं। देखो ये एक मॉलिक्यूल था ब्लू वाला, इसके आसपास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, वो एसोसिएट हो गए इस ब्लू के साथ में। देखो दे आर फॉर्मिंग अ लार्ज क्लस्टर। तो आप कोई बोलेगा सर आइडियल गैस इतना बड़ा, मेरा आइडियल गैस इतना बड़ा नहीं है। दिस इज बेसिकली क्लस्टर ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स टुगेदर।
विच आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मैं आपको पूछूंगा कि इस केस में ध्यान से सुनना, आइडियल केस में हाई प्रेशर पे सपोज इस कंटेनर का वॉल्यूम जो ये गैस ऑक्यूपाई करेगा, ये सिंगल गैस की बात कर रहा हूं, दिस मॉलिक्यूल, इसको भी सपोज रेड में एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों के लिए। देखो ये रेड वाला, अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं तो ये क्या दूसरे कोई मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट है? नहीं। तो क्या ये सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में है? हाँ। तो सपोज इसका वॉल्यूम है खुद का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, वो सपोज 0.001 ml है, ठीक है। अच्छा, पूरे कंटेनर का वॉल्यूम जो बचा है सपोज वो है 10 ml, तो आप बोलेंगे सर 10 ml एंड 0.001 ml, तो 0.001 ml इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। मेरा सही बात है, लेकिन अगर आप रियल गैस की बात कर रहे हैं, इफ यू टॉक अबाउट द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, तो रियल गैस के अंदर देखो क्या हो रहा है, वो एक लार्ज क्लस्टर बना दिया। अब सपोज पूरे कंटेनर का जो वॉल्यूम बचा है वो अगेन 10 ml है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम हो गया खुद का ऑक्यूपाई करने वाला क्लस्टर आने के साथ में क्या हो गया कि बहुत सारे मॉलिक्यूल साथ में आ गए, तो एक लार्ज मॉलिक्यूल बन गया। अब ये लार्ज मॉलिक्यूल घूम रहा है कंटेनर में, 10 ml का एरिया है, उसमें 10 ml का वॉल्यूम है, उसमें घूम रहा है। लेकिन इसका खुद का वॉल्यूम कितना है? इसका खुद का वॉल्यूम 0.001 नहीं है, बहुत बढ़ गया। इसका वॉल्यूम सपोज 1 ml हो गया, इतना साथ में आ गए। तो अब मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज द रियल वॉल्यूम, तो आप बोलेंगे सर रियल वॉल्यूम आइडियल वॉल्यूम से ज्यादा है, मतलब हियर इन दिस केस रियल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन आइडियल वॉल्यूम। दिख के ही आ रहा है, मैं पूछा कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे सर रियल वॉल्यूम इज आइडियल वॉल्यूम प्लस समथिंग। तो व्हाट इज दैट समथिंग? दैट समथिंग इज बेसिकली द वॉल्यूम करेक्शन, V डैश, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज कि व्हाट इज वॉल्यूम करेक्शन। सो अगर मैं किसी वॉल्यूम करेक्शन की बात कर रहा हूं तो वॉल्यूम करेक्शन इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएट टुगेदर, जिसके वजह से उनका वॉल्यूम बढ़ गया। सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम मल्टीपल मॉलिक्यूल आने की वजह से बढ़ गया, तो वॉल्यूम करेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी हटा दूं तो V डैश इज इक्वल टू N इंटू बी, वे B इज अ कांस्टेंट, ये याद रखने का। B इज द कांस्टेंट विच डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रियल गैसेस। इस B को हम लोग को वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी बोलते हैं। B इज कॉल्ड एज को वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी बोलते हैं। एंड B बेसिकली क्या है? B इज बेसिकली 4 टाइम द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल। B इज बेसिकली 4 टाइम द एक्चुअल वॉल्यूम, जो भी एक्चुअल वॉल्यूम लेगा ना उसका 4 टाइम वो B होता है, बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये याद रखने का। एंड वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल वी कंसिडर मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ स्पीयर, याद रखने का। गैसेस मॉलिक्यूल हो या सॉलिड मॉलिक्यूल, हम लोग स्पीयर के फॉर्म में इसको कंसिडर करते हैं। सो सिंगल मॉलिक्यूल यानी सिंगल स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो B इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये लिख सकते हैं हम लोग। सो B इज को और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम करेक्शन इज इक्वल टू NB, वे N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल एंड B इज नथिंग बट व्हाट को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, ठीक है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है तो B वैल्यू ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल क्लस्टर जल्दी बना रहे हैं तो ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अगर मुझे B का यूनिट निकालना है तो B इज नथिंग बट वॉल्यूम करेक्शन अपॉन N, दैट इज नथिंग बट लीटर पर मोल, दिस इज द यूनिट ऑफ B। सो गाइस, हम लोगों ने यहां पर वॉल्यूम करेक्शन डाल दिया NB, मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पर कि रियल वॉल्यूम इज इक्वल टू आइडियल वॉल्यूम प्लस NB। एक ये दूसरा आइडियल प्रेशर, यहां पर लिख सकता हूं आइडियल प्रेशर इज इक्वल टू रियल प्रेशर प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। अच्छा, इसको थोड़ा चेंज किया तो मैं ऐसा लिख सकता हूं दैट आइडियल वॉल्यूम इज रियल वॉल्यूम माइनस NB। तो देख लो, हमारे पास
आइडियल गैस इक्वेशन है। क्या है वो आइडियल गैस इक्वेशन? फाइनली समझ लो, आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसका रियल गैस इक्वेशन बनाना है तो आइडियल प्रेशर की जगह पे मुझे डालना पड़ेगा रियल प्रेशर प्लस AN² अपॉन V²। तो P प्लस AN² अपॉन V², ये रियल प्रेशर है, ये प्रेशर करेक्शन है। अच्छा, आइडियल वॉल्यूम की जगह पे डालना पड़ेगा रियल वॉल्यूम माइनस NB, मतलब V माइनस NB, रियल वॉल्यूम माइनस NB, ये हो गया वॉल्यूम करेक्शन, इज इक्वल टू nRT। सो दिस P प्लस AN² अपॉन V², V minus NB is equal to nRT. This is the real gas equation. So guys, अगर real gas equation मुझे लिखना है, I'll rub this out. तो अगर मुझे real gas equation लगना है, so real gas का equation क्या हो जाएगा? P plus AN² अपॉन V² इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT, where AN² अपॉन V² इज प्रेशर करेक्शन, NB इज नथिंग बट दी वॉल्यूम करेक्शन। ओके, लो प्रेशर पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं होगा, मतलब लो प्रेशर पे आइडियल गैस इज इक्वल टू रियल गैस, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। ये हम लोगों को ध्यान रखने का। जैसे ही आप मॉडरेट, देखो लो प्रेशर ले लिया, देखो लो प्रेशर पे क्या हो जाएगा, ये टर्म नहीं आएगा, ये टर्म नहीं आएगा, मतलब PV इज इक्वल टू nRT फॉर आइडियल एंड रियल। बट अगर आप मॉडरेट प्रेशर पे जाते हो तो मॉडरेट प्रेशर पे इक्वेशन होता है P प्लस AN² अपॉन V² इंटू V। मॉडरेट प्रेशर पे वॉल्यूम करेक्शन नहीं आता है, आपको याद होगा, मैंने वॉल्यूम करेक्शन हाई प्रेशर पे निकाला था, इज इक्वल टू nRT। 1 मोल के लिए n वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब P प्लस A V² इंटू V इज इक्वल टू RT। अब ध्यान देना, इधर पे ध्यान देना, मॉडरेट प्रेशर की बात कर रहा हूं। अच्छा, अभी मैं इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता हूं, जब V अंदर आ जाएगा तो इट बिकम्स PV इज इक्वल टू PV प्लस AV अपॉन V²। तो वन ऑफ द V गेट कैंसल आउट, मतलब सिर्फ क्या बचेगा, A अपॉन V इज इक्वल टू RT। अब दोनों साइड को मैं PV से डिवाइड, दोनों साइड को RT से डिवाइड करता हूं, तो PV अपॉन RT प्लस A अपॉन RT, V इज इक्वल टू 1। बट PV अपॉन RT क्या होता है, आपको याद होगा, PV अपॉन RT Z, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो Z इज इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन RTV, मतलब Z इज लेस देन 1, मतलब क्या हो गया, कंप्रेशन। मतलब कौन सा फोर्स, मतलब कौन सा डिविएशन आ गया, नेगेटिव डिविएशन। मतलब कौन सा फोर्स डोमिनेंट हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखा, तो ये था नेगेटिव डिविएशन के लिए। सपोज मैं बात कर रहा हूं हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर पे प्रेशर करेक्शन नहीं होता है, सिर्फ वॉल्यूम करेक्शन होता है। तो हाई प्रेशर पे इक्वेशन होता है P इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT 1 मोल के लिए, ठीक है। V माइनस B, P से मल्टीप्लाई कर दूं तो PV माइनस PB इज इक्वल टू RT। दोनों साइड को RT से डिवाइड कर दो तो PV अपॉन RT माइनस PB अपॉन RT इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये वैल्यू क्या होगा, Z, तो Z विल बी इक्वल टू 1 प्लस PB अपॉन RT। इसका मतलब ये हो गया कि Z इज ग्रेटर देन 1, मतलब पॉजिटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन का मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डोमिनेंट हियर। ओके गाइज, ये पूरा इक्वेशन कोई भी एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक में नहीं है। सो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हाउ अ रियल गैस डिविएट्स फ्रॉम इट्स आइडियल बिहेवियर। इसमें जेई और नीट दोनों का पार्ट मैंने इनकॉर्पोरेट किया है। आपके टेक्स्ट बुक में जेड के बारे में दिया है, 2 कांस्टेंट पीवी, 1 इज अ ग्राफ फॉर जेड, but they have not given an equation for the real gases, no explanation for the real gas, no explanation for the deviations। वो मैंने इसको कवर कर दिया है। ओके गाइस, till then take care, bye।